Hello everyone, welcome to Voice of. So today is 29th of April. The 29th of April, what are the current affair important news and editorial part we will discuss. तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो पहला वाला टॉपिक है इधर कि आपका दैट इज बट राजस्थान में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है, क्योंकि सेंचुरीज वगैरह ना पूछते रहते हैं इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। ये वाला सेंचुरी का नाम है शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। So first of all, they will ask you कि where exactly this Shergarh Wildlife Sanctuary situated. Sorry, ऐसे आपको पूछ सकते हैं यहाँ पे इको सेंसिटिव जोन है कि नहीं, ऐसे पूछ सकता है। तो पहले जो हमारा टॉपिक है ना, टॉपिक देखो ये वाला नहीं पूछेंगे कि हाँ ये शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे। टॉपिक है दैट इज इको सेंसिटिव जोन। ये क्या है? देखो यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछते रहते हैं, सिविल सर्विस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता रहता है कि व्हाट इज द इको सेंसिटिव जोन। ये इको सेंसिटिव जोन क्या होता है? क्या इसको सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट, कोई स्टेट ही सिर्फ डिक्लेयर कर सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें इनका कुछ है और ये भी कर सकते हैं? ऐसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलो फिर इसको हम देखते हैं। पहले बात है कि जब कोई बायोस्फीयर रिजर्व होता है और नेशनल पार्क होता है तो ज़्यादातर क्या होता है ना, जो नेशनल पार्क्स होता है आपको अगर पता है तो जो कोर एरिया होता है, जैसे कोई एक नेशनल पार्क ले लो आप, जैसे कि ये एक मैंने ले लिया कि चलो भीतरकनिका नेशनल पार्क और सुंदरबन नेशनल पार्क, कुछ भी ले लो। इसका जो कोर एरिया होता है ना, ये जो कोर एरिया, ये तो पता है सबको कि अनडिस्टर्ब्ड होता है। कोर एरिया के आसपास आपको सबको पता है कि बफर जोन होता है। सो इट विल एक्ट लाइक ए बफर जोन। जो इको सेंसिटिव जोन होता है ना, इको सेंसिटिव जोन इट्स एक्ट्स लाइक ए बफर जोन। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो कोर एरिया जहां पे टाइगर रहते हैं और लेट्स से द फ्लैगशिप स्पीसीज रहते हैं, और आई वुड से दैट इज व्हाट अम्ब्रेला स्पीसीज जहां पे रहते हैं, उसको प्रोटेक्शन किया जाता है। तो जब हमारे पास अगर कोई एक इको सेंसिटिव जोन अच्छा से आ जाए ना, तो फिर दैट वुड बी लाइक शॉक ऑब्जर्वर, दैट वुड बी लाइक व्हाट शॉक ऑब्जर्वर। लेट्स से टुडेज लाइफ अगर आप देखो कि नंबर ऑफ लाइक द अर्बनाइजेशन इज इंक्रीजिंग pretty fast. As the urbanization is increasing, hence the total area for the conservation is decreasing. Only human beings are getting the matlab all the way for their entertainment, for their comfort needs, for their everything, but nobody is thinking about the wildlife. So the day when we will think about the nature for the nature, obviously the nature will but revive of again, the nature will comes back to previous position, let it be. Now when we comes to the eco sensitive zone, so eco sensitive zone, that means it will be declared under wildlife protection act 1972। ये वाला भी आपको पूछ सकते हैं कि अंडर which act eco sensitive zones are declared, under 1972, under 1986 wildlife protection act and environmental protection act. These two acts empowers the state governments to declare the eco-sensitive zone. Now, the state government can declare the eco-sensitive zones up to 10 kilometer around the core area. अगर इससे ज़्यादा आप करने चाहते, then you have to get the permission from the central government. That can be enhanced by the central government. Then why this eco-sensitive zones around the core region? To what that will to observe the shock, to observe the shocks and for the better management, to promote the what in situ conservation, to minimize the animal human conflict, and to reduce the what I would say to minimize the impact of the urbanization. So these are the objective of eco sensitive zone. Now what exactly the issues? Now comes to the issues is that, let's say when I say or when you say, let's say the tribal protection act हो गया कि ये सारा सबको पता है, let's say PESA, let it be PESA, let it be fifth schedule. Now those peoples are residing within the national parks, let's say on the periphery of the national parks. I'm not saying within the core area, within the periphery of the national parks or the buffer zone. Tribals peoples, those who are doing the kheti वगैरह वो लोग करते, what will happens to them? Now those people, those tribal people, they are raising their voice against such eco-sensitive zones. That means you need to what, remove those peoples, or you need to restrict some sort of the economic activities in that area.
So the conflict coming from the tribal people. The tribals are saying that they are having the right, like the tribal, what I would say 1996 PESA Act is there. Then they are having tribal right is there. So they are also having tribal rights. Let's say in 2006, that is the Tribal Right Acts. So that is also there. So they are having the rights. So they are saying that will that will lead to the confrontation between this kind of act. So that is the issue is coming out. Okay. So this is all about the eco-sensitive zones. So here could be the questions. Now other question what could be from the here, like what are the do's and don't here in the eco-sensitive zones. इसको भी आपको याद करना पड़ेगा. What are the do's? Let's say do's means what? When I say eco-sensitive, that means you must not focus on the concretization. You must not focus on the industrials, like the industry, those would be like polluting. That means all sort of industry that is going to pollute the air, water, soil, they would be prohibited here. Organic agriculture, let's say कोई village हो गया, the village would be allowed to settle there, because गांव का जो लोग होता है ना वो उतना environment को harm नहीं करते हैं जितना अर्बन करते हैं. तो आई वुड से लाइक द ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर वुड बी बैंड, लाइक बहुत सारा एक बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट हो गया उसको बंद कर देंगे. कोई एक ऑर्गेनिक फार्मिंग खेती कर रहे, कोई लोग मुर्गा रखे हैं, somebody has done like the cow herding, so that would be allowed there. So like these are the okay. तो ये इको सेंसिटिव के ऊपर अच्छा खासा हमने डिस्कस कर लिया. नाउ कम्स टू दिस पॉइंट. Now here is again as the election is, we are passing through the elections, the democracy's largest festival. तो आप सबको पता है कि the elections, we are passing through the elections. Now देखो हमेशा there would be always debate होता रहता है कि भाई ये EVM वो हो गया, तो opposition they are always putting the allegations okay against the EVM. जब कोई हारते हैं ना तो वैसे एलिगेशन लगाते हैं. चलो फिर ऑपोजिशन के बात छोड़ो, अब क्या हुआ देखते हैं. इशू क्या है आप सबको पता है, मैंने भी पहले वाला मतलब बहुत सारे वीडियोस में डिस्कस किया कि ईवीएम, एक वीडियो मैंने डाल के रखे हैं, देख लेना वहां पे. एक तो हो गया आपका ईवीएम ना, ईवीएम हो गया, वीवीपैट हो गया, फिर मैंने ये वाला भी डिस्कस किया था आपका कि जो मतलब यूनिट हो गया, तो यूनिट ईवीएम का जो 2 यूनिट उसको भी मैंने डिस्कस किया था. तो ये सारे क्यों आया, वीवीपैट क्यों आया? टू इम्प्रूव द क्रेडिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, to improve the trust of the peoples, and जो मतलब ईवीएम का ऊपर जो मतलब क्वेश्चन था ना उसको हटाने के लिए हमने वीवीपैट लाया था, ताकि डाउट ना रहे लोगों को कि नहीं देखो जो ईवीएम में मतलब तो वोटिंग विच इज बीन डन इन द ईवीएम, that is the votes are going somewhere else, we are putting for someone else and the votes are diverted somewhere else. So for the cross verification the VVPATs was added. Now we will go through some important verdict of the Supreme Court. Now recently what happened, now this topic, why this topic is news, now comes to this here. Now recently Supreme Court in the latest verdict said, Supreme Court in the latest verdict said that Supreme Court has taken the verifications. उसने क्या कहा देखो कि लेट्स से इलेक्शन हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल सोचो कि कहीं पे अमित शाह और मोदी जी इलेक्शन लड़ रहा है, ठीक है, मोदी जी वहां पे फास्ट आ गए, जीत गए, कोई सेकंड पोजीशन पे आया होगा, किसी को थर्ड पोजीशन भी मिला होगा, तो इन दोनों को लगता है कि देखो मोदी जी इसलिए जीत गया, अमित शाह इसलिए जीत गया क्योंकि वोट टैंपरिंग हुआ है, जो ईवीएम टैंपरिंग हुआ है. तो उन केस में ये जो सेकंड वाला या थर्ड वाला ये लोग जाके वेरिफिकेशन करवा सकते हैं. क्या वेरिफिकेशन करवाएंगे? वीवीपैट, जो वीवीपैट को वेरिफिकेशन वो करवाएंगे. कितना करवाएंगे? हाउ मच? दैट टू बी द 5%. कितना करेंगे? ठीक है, वो 5% ऑफ द ईवीएम पर असेंबली, जहां पे भी असेंबली है, फॉर द असेंबली सेगमेंट इन द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, असेंबली पर असेंबली सेगमेंट इन ए पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी टू बी वेरीफाइड फॉर एनी टेम्परिंग और द मॉडिफिकेशन. ओके, द सिंबल लोडिंग यूनिट उसको भी सील किया जाएगा. सिंबल लोडिंग यूनिट्स फॉर द 45 डेज वो स्ट्रॉन्ग रूम पे रहेगा, ठीक है, वो सारे के सारे 45 डेज स्ट्रॉन्ग रूम पे रहेगा. देखो एक चीज यहाँ पे बहुत अच्छी है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो जो जिन लोग 2 नंबर 3 नंबर रैंक पे आते हैं ना, उनको अगर डाउट है, इफ दे आर हैविंग डाउट्स कि दे वुड हैव ओन द इलेक्शंस बट समबडी हैज डन व्हाट माल प्रैक्टिसेस, or I would say the modification has been done or the tampering is done, so that is why he or she could not own the battle. So in that case he or she can raise the मतलब for go for the counting वहाँ पे कर सकते हैं 5%, जो असेंबली में मतलब each
पर असेंबली सेगमेंट्स इन द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो जाके करवा सकते हैं. सो व्हाई दिस इज टू इंक्रीज द क्रेडिबिलिटी ऑफ ईवीएम. अगर इसको हमने लागू कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया और आपको समझ में आ ही गया, ठीक है, तो हमारा टारगेट ये वाला जो डेवलपमेंट हुआ है. एंड द सिंबल लोडिंग यूनिट, इसको याद रखना क्योंकि ये वाला इस बार न्यूज पे है. सिंबल लोडिंग यूनिट वो क्या होता है? सपोज जैसे कि एक ईवीएम मशीन है, ओके, तो इसमें एक सीरियल नंबर हो गया, नेम हो गया, सिंबल हो गया. तो पता चला कि एक लैपटॉप है और सिस्टम यहाँ से मैंने यहाँ पे लोड कर दिया कि चलो भाई ये इस बटन इसके लिए, इसके लिए. तो ये जो लोडिंग हुआ है ना, इसको भी सील करके रखो 45 डेज तक, ताकि उसको भी क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाएगा. अगर किसी ने सिंबल लोडिंग में गलती किया होगा तो वो तो फिर वोट भी तो गलत होगा ना. तो इट्स अ ह्यूमन एरर भाई. ये कोई ऐसे नहीं कि ईवीएम ने कर दिया, ऐसे नहीं होगा. ईवीएम कभी नहीं कर पाएगा, ठीक है. वो ह्यूमन एरर हो सकता है बट दैट वुड नॉट बी ईवीएम एरर. ये ध्यान से याद करना इस सेंटेंस को. देयर मे बी ह्यूमन एरर बट मस्ट नॉट बी ईवीएम एरर. तो नहीं हो पाएगा भाई. चलो ये फिर हमने देख लिया, ठीक है, तो इसका इशू. लेकिन एक चीज यहाँ पे बहुत अच्छे लिखा है, ये वाला जो केसेस है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस राइटिंग. तो मेंस पे अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, जैसे कि लिखा है देखो, सुब्रमण्यम वर्सेस सुब्रमण्यम स्वामी, तो सबको पता है बीजेपी का एमपी है, बहुत सीनियर सुप्रीम कोर्ट लॉयर भी है. तो सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चंद्रबाबू नायडू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर. तो ये सारे केसेस को आप लिख सकते हो. इन द केस वर्सेस सुब्रमण्यम वर्सेस जो इलेक्शन कमीशन, वहां पे बोला गया वीवीपैट का यूज, ठीक है. तो पहली बार सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वीवीपैट सुप्रीम कोर्ट अलाउ किया. देन चंद्रबाबू नायडू वर्सेस रेस्ट ऑफ इनके खिलाफ, इन केस में क्या होगा, तो दैट इज ईवीएम विद वीवीपैट स्लिप्स पर रैंडमली जो 5 होगा ना, एक असेंबली में 5 का जो रिकाउंटिंग के लिए क्या गया था. 2-3 केस हो गया आपका, याद रखना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस आंसर राइटिंग. अगेन आई एम रिपीटिंग, कभी अगर क्वेश्चन आए इलेक्शन के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के क्रेडिबिलिटी के ऊपर, इस केस को ना आप लिख दो. सो इन द केस ऑफ चंद्रबाबू नायडू, इंक्रीज क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए बोला गया था, ताकि देखो जो ईवीएम है, वीवीपैट है, उसको ना 5 रैंडम सिलेक्टेड पोलिंग स्टेशन कर लो, किसी भी एक असेंबली पे जाओ, फिर वहां पे रिकाउंट कर लो. तो बस उसको आगे चल के सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोल दिया है ना, इन द लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ठीक है वेरिफिकेशन आप कर लो, जिसको करना है, जिसका नंबर 2 नंबर 3 आता है ना, दे कैन हैव 5% ऑफ द ईवीएम. 5% ऑफ द ईवीएम, जितना मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वहां पे 50 होता है, 100 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, उनमें से 5% ईवीएम पर असेंबली आप काउंट कर सकते हो, वेरिफिकेशन कर सकते हो. तो ये हो गया आपका, ठीक है. तो इसका एसेंस हमने देख लिया. सो दैट जिनके जिनके डाउट है, दोज हार्स हैविंग, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई देखो 100% नहीं हो पाएगा कि ओके 100%. तो सुप्रीम कोर्ट ने देखो, अगर जो एप्लीकेंट था ना, उन्होंने बोला कि सर देखो आपने जो 55% बोल रहे हो ना, इसको ना पूरा 100% कर लो, ताकि हम पूरे की पूरे गिनती करेंगे. भाई अगर पूरा का पूरा गिनती करना है तो वीवीपैट ईवीएम का क्या मतलब रह गया, सोचो. मतलब उसमें तो ये हो गया कि सिंपल पेपर बैलेट पेपर फिर हो गया. मतलब इसमें तो जबरदस्ती हो रहा है ना, जैसे कि एक लाइक व्हाट जबरदस्ती. एंड अगेन वी आर मतलब कमिंग टू द प्रीवियस वन, काउंटिंग वोटिंग वही हो गया पेपर वाला. तो यहाँ पे तो एक तो देखो ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, दूसरे बात बहुत टाइम टेकिंग हो जाए. तो इलेक्शन कमीशन क्या ना, इलेक्शन कमीशन अपोजिंग द 100% रिकाउंटिंग, वो बोल रहे कि देखो ये कुछ मतलब डज नॉट हैव एनी सेंस, कोई सेंस नहीं बनता कि पूरा 100% गिनती करो. तो हो गया, समझ में आ गया सबको. चलो फिर देखो ये वाला आर्टिकल्स किसके, हरदीप सिंह पुरी के लिखा गया. सो दैट इज द व्हाट वन ऑफ, ये आर्टिकल बहुत बढ़िया है. क्यों बदलो, जो लोग मेंस आंसर लिख रहे हैं ना, ये मेंस आंसर राइटिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल आई विल से. क्यों, यहाँ का पूरा गवर्नमेंट का डेटा ही दिया गया भाई. मतलब आप अगर यहाँ पे आप देखोगे ना, पूरा का पूरा डेटा दिया गया. कैसे, चलो फिर यहाँ पे मतलब इनका एसेंस बता देता हूँ. इलेक्शन चल रहा है, सबको पता है, द चॉइस बिफोर द इंडियस इलेक्टर्स. एक बात अगर आपको मैं पूछ लूं, आप इफ यू आर राइटिंग द मेंस क्वेश्चंस, हाउ मेनी पीपल्स वेर एलिजिबल टू पुट द वोट? 97 crores. The 97 crores the voters are, that is what eligible to exercise their pollings vote. लेकिन भाई इसमें से सारे लोग थोड़ी आ रहे हैं वोट देने. ये वाला क्वेश्चन एक आपको डेटा मिल गया
कि ये जो इलेक्शन हो रहा है 97, सो 1.4 बिलियन से 97 crores peoples at the population, part of the chunk, the huge chunk of the peoples, they're eligible. Now, आप इशू पे आते, इनका कहना है कि क्या है, देखो, one must consider the credibility of the two side, one that offers, that is the ironclad guarantee based on the robust performance, दूसरे that is the vague platitudes of the rest of the legacy. नाउ इन दिस इलेक्शन देयर इज ए बैटल बिटवीन टू, इनका कहना है, हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि एक साइड बीजेपी, जिनका मतलब है डेवलपमेंट, जिनके पास प्रूफ है करने के, क्रेडिबिलिटी है भाई, क्रेडिबिलिटी, वो प्रूफ कर रखे, देखो मैंने ये किया वो किया। और दूसरे साइड पे क्या है, कांग्रेस है, जो अपने लेगेसी पे चल रहा है, वही पुराना बात को दोहरा है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, उनका लेगेसी है, जैसे गांधी फैमिली लेगेसी। सो पीपल मस्ट चूज, बट दैट इज द क्रेडिबल, जिन्होंने कुछ क्रेडिबिलिटी दिखाया, जिन्होंने डेवलपमेंट रोबस्ट परफॉर्मेंस किया है, लोग उनको ही चुनेंगे। तो इनका ऐसे डिबेट है। चलो फिर डिबेट, ये तो एसेंस था। नाउ वी विल कम्स टू द पार्ट ऑफ द डिबेट बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। सो when it comes to the important parts, 97 crores peoples, the voters, to have make the between, but contesting the vision of the development and stability growth, that is the but confirmed by the leadership of Prime Minister Modi ji versus the chaos. Now here you can see the sentence में क्या कर रहे हैं, the author is saying the elections are the ultimate exercise of the democratic choice. This is very good sentence. With 97 crores peoples have to make their choice between the two options. One, that is the what? The stability and growth, development, stability and growth led by BJP, that is the leadership of Prime Minister Modi ji, versus chaos. कौन कर रहे? इंडिया अलायंस। इनका कोई है नहीं, जैसे प्राइम मिनिस्टर अभी बोल रहे थे कि भाई 12 महीने में 12 प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, 5 साल में, मतलब सॉरी 5 साल में 5 प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, क्योंकि 5 दल मिलके करोगे तो स्टेबिलिटी नहीं आता है। So it's a choice that matter. तो ये is a choice that matters. The farmer shall illuminate the path of prosperity and peace. इनका कहना है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का विजन है ना, पीस, प्रॉस्पेरिटी, तो ये इनका विजन है। इनका विजन नहीं है कि chaos। उनका वो कहना है कि देखो, जब colonial government, when the colonial government, that is the British, were ruling us, and we were that is but we went to vote in the 1951-52 when India was ready to exercise the first and the democratic rights. That times the colonial masters, they were largely, that is what illiterates and poor nation. उनका कहना कि देखो यहाँ पे तो ये लोग क्या करेंगे, उनका यही तो मतलब लेगेसी था ना कि इंडिया देखो पोर है, मैं आप ये क्या करेंगे, इंडिविजुअल एडल्ट फ्रेंचाइज बोल रहे हैं, क्या करेंगे, ये सब बेकार है, इनके पास कुछ है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। तो एक दूसरे साइड पे क्या था, हमारा ड्रीम था, कमिटमेंट था, तो लोगों ने चुना ड्रीम एंड कमिटमेंट। अब इंडिया बन गया, देखो इंडिया इज नाउ वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो जो विजन ना जो 2026 में अगर हम देखेंगे, इट इज द फेथ ऑफ बीइंग एक्सरसाइज वंस अगेन। सो बीजेपी संकल्प पात्र, बीजेपी's politics is for the infrastructure, for the food security, for the ensuring clean energy, affordability, ये सारे किसका 1.4 बिलियन। व्हाट इज द थीम, बीजेपी का फिलोसॉफी क्या है, अंत्योदय से सर्वोदय। ना दिस इज वेरी गुड, ये आप ऐसे में लिख सकते हो। आप ये कहाँ पे लिख सकते, ऐसे में देखो, हमारा टारगेट है एग्जाम क्वालिफाई करना भाई, तो यहाँ पे लिखा है क्या, अंत्योदय से सर्वोदय। मीनिंग्स व्हाट इज अंत्योदय? अंत्योदय का मीनिंग्स है डेवलपमेंट ऑफ द पोरेस्ट ऑफ द पोर, मतलब सबसे लास्ट इन, मतलब ये 1.4 बिलियन, मतलब जो लोग लास्ट पे बच्चा है ना, उसको उठा, उसको बोलते हैं अंत्योदय। व्हाट इज सर्वोदय? सर्वोदय इज द गांधीजीज फिलोसॉफी, दिस इज द गांधीज फिलोसॉफी, अंत्योदय से सर्वोदय, मतलब लास्ट को उठाओ, सबको उठाओ भाई, ऐसे नहीं, मतलब लास्ट से लेके सबको लेके चलो। दैट इज द व्हाट, डेवलपमेंट फ्रॉम द लास्ट टू द फर्स्ट, सबका होना चाहिए। सर्वोदय मतलब सबका, अंत्योदय मतलब लास्ट माइल, मतलब क्या, लास्ट पर्सन, तो सबका। दिस फिलोसॉफी इन्फ्लुएंस्ड हुम, बीजेपी लीडर्स, उनको इन्फ्लुएंस किया है। ठीक है, जैसे कि आप श्याम प्रसाद मुखर्जी, दिस फिलोसॉफी ऑल्सो इन्फ्लुएंस श्याम प्रकाश मुखर्जी, अंत्योदय से लेके सर्वोदय। तो ये वाला आपको अंत्योदय सर्वोदय पूछ सकता है, क्योंकि गांधी जी का फिलोसॉफी हमेशा
आप इको ऐसे में लिख सकते हो। तो जैसे यहाँ पे आप चलो, नाउ ऑथर इज सेइंग दैट Swachh Bharat Vision, 11 crores toilets have been built under the Swachh Bharat mission. 12 crore tap water connection is been given under the Jal Jeevan missions and the Amrut. Amrut means that is the what? Atal mission for the rejuvenation of urban and transformation. Then what that is, and remarkable achievement also means for the that is what Indians household who have saved 60,000 पर हेड ड्यू टू द व्हाट दैट इज हेल्थ। जैसे कि आयुष्मान भारत हो गया ना, यहाँ पे जो फ्री ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वहां से बहुत सारे लोगों का बेनिफिट भी हुआ है लास्ट 10 ईयर्स में। उसमें से अगर हम देखेंगे ना, नेक्स्ट व्हेन वी कम्स दीज आर द व्हाट सम ऑफ द सक्सेसफुल स्टोरीज इज बीन रिटन, like nearly 4 crores household they have been constructed, that is the PM Awas Yojana. The PM Awas Yojana 4 crores, जिसको याद रख सकते, 51 crore that is the Jan Dhan account is been opened, Jam Trinity, and 30 lakhs crores money is been transferred, that is the through the DBT. PM Kisan and PM Fasal Bima has reduced the cost of certain uncertainties of the farmer. I think this is one of the holistic scheme, PM Kisan scheme, ये बहुत important scheme है. Apart from that, transformative policies resulted 25 crores of what that is the multi-dimensional poverty. मतलब 25 crores लोग जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आ गए, ये सारे गरीबी हटाओ तो उन्होंने शुरू किया था, लेकिन आज भी वही बोल रहे कि गरीबी हटाओ। तो ठीक है, तो कांग्रेस लेड उनके पास उनका पॉलिटिक्स ऑफ व्हाट दैट इज द स्कारिसिटी, स्टिल दैट इज व्हाट हैकरिंग बैक टू द डेज गरीबी हटाओ। अब भी बोल रहे गरीबी हटाओ, भाई गरीबी नहीं, इंडिया में और कुछ करना है। द मॉडल ऑफ दैट इज व्हाट मेडियोक्रेसी, कोलिएशन, ये सब कांग्रेस बोलते हैं। ये सब कोलिएशन यूपा टू तो ही इज टॉकिंग अबाउट द यूपा टू। भाई ये जो कोलिएशन गवर्नमेंट होता है ना, ये सस्टेनेबल नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले सकते। लाइक JNK वाला हो गया, कि आधार वाला हो गया, कि आपका जितने सारे जो इम्पोर्टेंस लाइक मतलब इम्पोर्टेंट जितने सारे आ गया, जैसे आप CA ले लो, और कोई आप मतलब जैसे कि व्हाट आर्टिकल 44 भी ले लो, यूनिफॉर्म सिविल कोड ले लो, LGBT केसेस ले लो, तो लाइक दीज थिंग्स हैव डेवलप हुआ। तो ये कोलिएशन गवर्नमेंट में ना इतने सारे चेंज नहीं हो पाएगा। तो अपोजिशन लैक एंड व्हाट इकोनॉमिक विजन, उनके पास कोई इकोनॉमिक विजन नहीं है। तो दैट मीन्स वो लोग बोलते हैं कंसिडर द प्रॉमिस ट्रांसफर ऑफ 1 लाख एनुअली टू द वुमेन, बोलते हैं कि 1 लाख दे देंगे, मतलब हर एक वुमेन को बेकार के बात करते हैं ऐसे। लाइक दैट विल कॉस्ट 32 लाख crore. Can you imagine that ones? Those Congress promising 1 lakh money will be transferred to the women, and that will cost what? Total 32 lakhs crores, and the total revenue expenditure of the government is 35 lakhs crore. Can you imagine this math? चलो गवर्नमेंट का टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 35 एंड कांग्रेस बोल रहे आपको 32 करोड़ एनुअली खर्च करे। भाई पैसा कहाँ से लाओगे? स्विस बैंक से लाओगे क्या? हाँ, पैसा कहाँ से लाओगे? तो आई थिंक दे डोंट हैव, द ऑथर इज सेइंग दे डोंट हैव दिस कैलकुलेशंस ऑफ द मैथ ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, ऐसे तो दीज आर द सर्टन आई वुड से ऑपोजिशन का काम क्या है, ऐसे बोलते। तो मोदी गवर्नमेंट हैज डेमोन्स्ट्रेटेड अ बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसी, जैसे कि आप मेक इन इंडिया हो गया, देन ही इज डूइंग बिजनेस की बात कर लो। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज इंक्रीज्ड 3 times, that is what 3 times, rising from 3.92 lakhs to 11.1 lakhs crore. That is very important. GST कलेक्शन बहुत बढ़ गया, IBC हो गया, एसेट मोनिटाइजेशन हो गया, लेबर लॉ रिफॉर्म हो गया, स्टार्टअप हो गया, PL स्कीम्स हो गया, इनोवेशंस हो गया। सो दीज आर द बुलेट ट्रेन हो गया, सो दीज आर द व्हाट वंदे भारत ट्रेन हो गया। सो दिस ट्रांसफॉर्मेशन LPG कवरेज हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो कंपैरिजन मोदी गवर्नमेंट्स नियरली अगर हम देखेंगे तो इसमें बहुत बढ़िया काम किया। सो दैट इज व्हाई ही इज टॉकिंग अबाउट कि पीपल विल चूज द डेवलपमेंट, ओके, पीपल विल चूज द डेवलपमेंट एंड modernity. So this is all about from here. Now comes to this one. When I say LGBT plus community, मतलब क्या? asexual, bisexual हो गया, गे हो गया, तो ठीक है, ये सारे के मिला तो फिर होते हैं LGBT प्लस कम्युनिटी। तो बस इसको याद कर लो। तो वेस्टर्न कंट्रीज में क्या हो रहा है ना, कि वहां पे नीड द होलिस्टिक अप्रोच टू द जेंडर, दैट इज व्हाट डायस्पोरिया। तो
आप सबको पता है कि वेस्टर्न कंट्रीज डू टॉक अबाउट द जस्टिस, दे टू टॉक अबाउट, देन व्हाट द जस्टिस इज बीन मेटेड आउट टू द व्हाट आई वुड से यूक्रेन, व्हाट द जस्टिस इज बीन मेटेड आउट टू गाजा। क्या हो रहा है, ये क्या जस्टिस है क्या, वेदर दीज आर द जस्टिस? ओके, नाउ लेट इट, उसको भी छोड़ दो। चलो भाई, आप क्या है जो एलजीबीटी ना, इनके कुछ लोग तो उनको सपोर्ट करते हैं, प्लस कुछ लोग को ब्लैक क्लास भी है। Now the LGBT community has gained a broader that is what acceptance in the most of the Western countries. A backlash against the community too has grown. उनके खिलाफ भी ऐसे कुछ देशों में, यूएसए यूके वगैरह देशों में बहुत जगह पे उनके बैकक्लास भी है। तो ये वाला इशूज है, बाकी मैं नहीं जा रहा हूँ कुछ केस स्टडीज वगैरह, वो उसको नहीं जा रहा। चलो फिर ना, यहाँ पे एक देखते हो आका महादेव। तो भाई यहाँ पे ये भी एक बहुत बड़ा आर्टिकल्स है, तो मैं आपको शॉर्ट समझाता हूँ। मीराबाई को सबको पता है, मीराबाई 16th सेंचुरी वुमन सेंट है। देन अक्का महादेवी कर्नाटका से है, एंड दैट इज लाल डेड फ्रॉम द कश्मीर। तो इन तीनों वुमेन्स का नाम याद कर लो। एक हो गया आपका मीराबाई, दो हो गया अक्का महादेवी, तीन हो गया लाल डेथ फ्रॉम द कश्मीर। ये तीन जो था ना, मेडियाबल वुमेन सेंट थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंट थे भाई ये लोग। तो इसलिए तो रेणुका नारायण हैज रिटन ऑन द व्हाट अक्का महादेव फ्रॉम द कर्नाटका। इनका लाइफस्टाइल के ऊपर उन्होंने लिखा कि ये क्या था। देखो मैं शॉर्टली बोलूं, दिस अक्का महादेव, ठीक है, सी वॉज ए प्रेटी ब्यूटिफुल वुमन फ्रॉम द कर्नाटका, एंड सी मैरिड ए जैन कम्युनिटी मैन हु यूज्ड टू बी प्रेटी प्रॉस्परस एंड वेल्दी फैमिली से था, जो जैन कम्युनिटी जिसको इन्होंने शादी किया था। बट आफ्टर मैरिंग सम ईयर्स सी लिव्ड द दैट इज बट फैमिली as she was a Saiva Bhakta. Okay, so that time she married a Jain person. He was a very wealthy. She had all the pleasure like that means a prosperous, healthy life and the happy family. But one day she left everything. She left everything to roam naked without any clothes, because she was inspired by Shiva. She was inspired by Jain. She was, that is आपको सबको पता होगा, दिगंबर those who they didn't use what any kind of clothes. They were the Jain sect, those who didn't wear okay anything. तो इनको दिगंबर कहते हैं, दिगंबर एंड सितंबर। सितंबर का मतलब क्या होता है, दो सेक्ट ऑफ जैना हु यूज्ड टू वेयर द लाइट वाइट फीदर कलर्स लाइक वट ड्रेसेस, तो दैट वुड बी सितंबर, मतलब श्वेत वस्त्र, जिसको बोलते हैं श्वेत वस्त्र। तो वो, तो दैट इज वाई सी वॉज लाइक दैट, एंड सी वॉज वन ऑफ द वट daunted woman and Chena Mallikarjuna, who was in love with Chena Mallikarjuna. So who this Chena Mallikarjuna? The name of Lord Shiva. She was in the love with Lord Shiva. So forget everything. उसने सब कुछ छोड़ दिया था, आ गए थे फिर, ठीक है। तो उनके मतलब भगवान के शरण पे आ गया था, बहुत अर्ली भाई 20s पे आ गया था, सबसे बहुत ही जल्दी आ गया था। तो भैरवस, अब सबको पता है भैरवस क्या होता है। भैरवस आर द सेंट कम्युनिटी, जो लोग शमशान में रहते, तो ये भैरव के साथ रहने लग गए। वो तो मेल डोमिनेटेड था ना, ये जाके वुमेन पहुंच गए उधर, ठीक है। तो इन्होंने सारे के सारे, उन्होंने उनका एक फिलोसफी, देखो इनका फिलोसफी क्या था। फिर इसका मतलब जो मौत हुआ कैसे हुआ, इन्होंने मतलब क्यों, अगर वो बोलते हैं खुद को कि इज अ गॉड्स वाइफ, ठीक है। तो उनका हस्बैंड क्या था ना, गॉड्स। इनको जब पूछा कि भाई आपने मैरिड किया ना, हाँ, किससे ना, गॉड से। कौन? दैट इज द व्हाट चेन्ना मल्लिकार्जुना, दैट इज द लॉर्ड शिवा, उनको साथ, जिनका कोई डेथ नहीं है। आई लव द हैंडसम वन, ही हैज नो डेथ, डीके और फॉर्म, नो प्लेस और साइड्स, नो एंट नॉर बाथ मार्क, आई लव हिम ओ मदर। इन्होंने कहा कि देखो मैं उनको चाहता हूँ, द पर्सन हु डज नॉट हैव एनी दैट फॉर्म, जिसका डेथ नहीं है, जिसका जन्म नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो मतलब सी वाज लाइक दैट। सी हर बॉडी यूज टू कवर थ्रू हर लॉन्ग हेयर बिकॉज आज सी मतलब उनको पूछा कि भाई आप कुछ ड्रेसेस वगैरह नहीं पहनते, वुमन हो, वो बोलते हैं कि भाई देखो ऐसा है, जिसका मन साफ है, जिसका हृदय अच्छा है ना, उसका ड्रेस का कोई जरूरत नहीं होता है, ठीक है।
तो दैट इज वाई सी यूज टू टॉक अबाउट लाइक द फिलोसफीज एंगल, अगर इसको देखेंगे ना, सो दैट इज ऑल अबाउट. देयर वाज ऑल्सो ए टॉक बिटवीन, दैट इज व्हाट, अलामा प्रभु एंड अक्का महादई, इन दोनों के बीच में फिर डिबेट हुआ, क्यों आए हो आप, क्या है आपका. वैसे पीपल्स, मेल्स एंड द फीमेल्स ब्लस व्हेन ए क्लॉथ कवरिंग देयर, दैट इज बट सेम कम्स लूज. वो फिर मतलब ब्लस, मतलब समझ, कोई भी लोग अगर उसका ना, मतलब जैसे कि आपका कोई, मतलब जैसे कि somebody has wearing a clothes, जब वो क्लोथ्स कभी हट जाता है तो थोड़ा सर में जाता है. when the lord of lives, okay, when the lords of lives, the lives don't without a face of the world, how can you be modest? When all the world is in the eye of Lord, on looking everywhere, how can you cover and conceal? इनका कहना है कि भाई ये ड्रेस फ्रेस क्या रखा है, कुछ नहीं में रखा है. किसको आप कहाँ कहाँ खुद को छुपा रहे हो भाई? ड्रेस पहन के आप छुपा रहे हो. आपको लगता है कोई आपको देख लेगा, मैं एक अच्छा सा जीन्स पहन लूँ, अच्छा सा टोपी पहन लूँ, शू पहन लूँ, कुछ नहीं होता. क्योंकि आप किससे छुपाओगे? जो आपको सब कुछ देख सकता है. कौन? वह लॉर्ड जो सब कुछ देख रहा है, वो सब कुछ देखता है. जो सब कुछ देखता है उसको क्या छुपाओगे आप? नहीं छुपा सकते ना. तो दैट इज वाई सी वॉज टॉकिंग फिलोसॉफिकल. तो इसको ना आप ऐसे पे लिख सकते हो भाई, भगवान के एंगल से. दैट मीन्स वी नीड टू रिलीज दिस एनर्जी इनटू ए पॉजिटिव एंगल. ठीक है, इसको जब लिख रहे हो, जैसे कि कोई रेप का केस हो गया, आप लिख रहे हो, अगर ये नजरिया हम चेंज कर देंगे ना, तो ये सब तो कम हो जाएगा. तो दिस इज ऑल अबाउट. ओके, सो चलो भाई, एक रिक्वेस्ट है आप सबको, लाइक करो, रिक्वेस्ट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो. दैट इज द ओनली मोटिवेशन आई रियली, that one is needed. Okay, thank you everyone, have a good day to all.